to answer these questions. After viewing this lecture, you can able to answer these questions. Okay. So before starting the lecture, please subscribe my channel. So let's begin this lecture. JVM stand for Java Virtual Machine. It is a Java virtual machine. As I told you in the last lecture that हम अपने source code को compile करते हैं Java C compiler से और that going to be converted into byte. और वो बाइट कोड क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है. ओके. नाउ दैट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड is capable to run on various platforms. But how? So that is done with the help of JVM machine. Every platform have their own JVM machine. So that JVM machine provide a runtime environment in which that bytecode is going to be executed. क्या करता है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आपका ये बाइट कोड जो होता है कंपाइल होने के बाद मिलता है मतलब डॉट क्लास फाइल इज गोइंग टू एक्सिक्यूट. अगर मैं इसके काम की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी, इट परफॉर्म फॉलोइंग थिंग्स लाइक loading of your class file, verification of class file, execution of class file, and provide a runtime environment. So it basically load the code, verify the code, execute the code, and provide you a runtime environment. Okay, so these are some basic functionality of JVM. Let's see the architecture of your Java virtual machine. आर्किटेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स जो उसके अंदर होती हैं जावा वर्चुअल मशीन में, जो आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं. ओके. सो हमारे जावा वर्चुअल मशीन के अंदर तीन चीजें बेसिक चीजें होती हैं. लाइक क्लास लोडर. ये क्लास लोडर इज रेस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज के रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर loading the class file, for verification, for initialization. Okay, these are some basic tasks of class loader. We will see, soon we are going to see what are the various loader we have. Okay, in order to what are the class we are going to load. Now as you know कि our application dot class file, ये आपको हमें पता है कि जो compile होकर हमारे पास आती है, these class files are related to Java application program interface. Okay, so this is the memory area which is provided in your Java virtual machine and used by your program in order to execute. Okay, so this is the one of the important part of your Java runtime environment. Okay, so in this runtime environment we have specific memory area for specific things. Okay, we will discuss these memory area in next slide. But before that, let's talk about this execution engine. This execution engine is responsible for executing the code. It is interacting with your native method library like .dll file, .so files, and we have a native method interface, and this execution engine is responsible for this interaction. ओके. नेटिव मेथड लाइब्रेरी में आपके जैसे नेटिव कुछ हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शनैलिटीज को यूज करना चाहते हैं तो दैट इज इंक्लूडेड है. डॉट डी एल फाइल आप जानते हैं, कुछ एप्लीकेशन भी आपने देखी होगी दैट डिमांड फॉर डी एल फाइल्स. ओके, सो सिमिलरली हम लोग अगर कोई फंक्शनैलिटी सिस्टम की यूज करना चाहते हैं तो इन दैट केस that native method interface is going to be helpful to us. Okay, let's see the brief of this class loader, what is existing inside this class loader. Okay, that class loader is going to perform three tasks: load, link, and initialize. And in this load we have three types of loader: bootstrap class loader, execution class loader, application class loader. No, and one more important thing is there. These are the execution class loader and application class loader are child of the bootstrap class loaders. Okay, they are inheriting to each other. And inheritance means they are holding the property of the superclass. Okay, let's talk about this bootstrap class loader. Bootstrap class loader is responsible for loading
those class which is essential for JVM for functioning properly. आपका जो बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर लोडिंग ऑल द क्लास फाइल जो हमारे JVM की फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प हो रहा है. ओके, सो दैट इज द task of your bootstrap loader. It is basically responsible for all the class which is going to help you provide the functionality और किसी JVM मशीन की फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली यूज करने के लिए हम यूज करते हैं. So what is the responsibility here? Responsible for loading the class core Java class, that is java.lang, java.io. हम लोग आगे चल के देखेंगे कि how we are going to use these classes है ना. ये जावा पैकेज के अंदर जो पैकेज है हमारे यूटिलिटी पैकेज हो, इनपुट आउटपुट पैकेज हो या लैंग्वेज पैकेज हो, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं. सो इट डिफाइन दीज क्लासेस फ्रॉम, कहाँ से उठाता है ये क्लासेस. जेडीके के अंदर हमारे पास आपने देखा हो JRE एक नाम फोल्डर होता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है. लाइब्रेरी और rt.jar में ये सारी क्लास फाइल्स आपकी होती है. ओके, आप कई बार सर्च भी करते हैं लेकिन आप यू कांट एबल टू गेट दीज फाइल्स जो दीज पाथ्स हम भी मेंशन करते हैं अपने प्रोग्राम में. सो बूट लोडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. ओके, नाउ एक्सटेंशन क्लास लोडर अगेन इट इज अ, as I told you ना in the starting मैंने आपको बताया, it is a child of bootstrap class loader. इसके पास all the functionality of bootstrap class की सारी functionalities के अंदर होती है. okay, so ये responsible होता है for loading the extension directory, जहाँ की class होती है for extension directory from extension directory, ये उसके लिए responsible होता है. ये extension directory कहाँ पे होती है आपकी, ये that is present in again JRE live and extend folder. Okay, so now our next loader is system class loader. It is also called as a application class loader and it is responsible for loading the class, loading code from the path specified. ये किस लिए responsible होता है, कोड को लोड करने के लिए. तो from the path specified in class path environment variable. ये क्या किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर आप अपनी क्लास को किसी क्लास फाइल का पाथ सेट करते हैं तो ये क्लास फाइल पाथ में जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको ऑटोमेटिकली ये लोड करके लेके आता है आपकी. ओके, और वी कैन से कि इट इज ऑल्सो यूज टू लोड द एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट. जो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट क्या होती है, जहां से हम एंटर करते हैं, कहाँ से एंट्री होती है हमारी किसी भी प्रोग्राम की, दैट इज इन मेन. सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग योर entry point, that is void, static void main. okay, so सबसे पहले क्लास लोडर ने क्या किया, आपकी क्लासेस लोड की. नाउ इट इज लिंकिंग इज द अनदर फंक्शनैलिटी दैट इज डन बाय योर क्लास लोडर. it verify the class files, prepare the variables for you and resolve some problems if there is. Initialization is going to initialize the variable by their default value. okay, फर्दर वी कैन एबल टू चेंज, बट हमारे हर एक वेरिएबल की हर एक डाटा टाइप की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ये उसको इनिशियलाइज करता है. सो दिस ओवरऑल दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर क्लास लोडर. आपकी क्लासेस बन गई, क्लास लोड हो गई, आपकी जितनी फंक्शनैलिटी जो भी रिक्वायर्ड है सारी आ चुकी है. नाउ योर वेरिएबल इज रेडी. सो लेट्स टॉक अबाउट योर memory area. okay, that memory area basically consists of these things. okay, then we are going to talk about our execution engine. so let's talk about the memory area. method area जिसके बारे में बात करें तो ये क्या कंटेन कर रहा है, इट कंटेन द रन टाइम कॉन्स्टेंट पूल्स. मैं स्ट्रिंग की बात करेंगे तो वहां पे हम कुछ कॉन्स्टेंट पूल्स बनाते हैं. वो कॉन्स्टेंट पूल्स कहाँ बनते हैं, हमारे मेथड एरिया के अंदर. मेथड का डाटा code of that method is also present in this method area itself. okay, now if we talk about the heap area, it is the area which basically hold all the object that is present in your application. okay, जो आप रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पे आपके हीप एरिया के अंदर. ओके, तो आप एक चीज एकदम क्लियर रखिए ना कि आपका मेथड एरिया में क्या चीजें हैं और आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं. तो आपसे पूछा जा सकता है वेयर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म दे आर प्रेजेंट, है ना, दे आर प्रेजेंट इन द हीप एरिया, जो कहाँ है हमारे मेमोरी एरिया के अंदर का एक पार्ट है. ओके, सो
Now next is PC register, that is program counter register. It hold the address of your next instruction. Okay. Now there is Java stack. Java stack, आप stack का यूज जानते हैं कि जैसे कि हम लोग रिकर्सन में या फिर फंक्शन कॉलिंग में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जंप होते हैं या एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जंप होते हैं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट जंप्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर वी हैव टू कम बैक, हमें कहाँ वापस आना है. So for that you need you store that last jump instruction somewhere. So I'm going to we can able to make use of stack. As you know कि stack हमारा last in first out पे वर्क करता है, तो जो आपका लास्ट टॉप पे जो भी एलिमेंट होगा दैट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन जिसपे हमें जंप करना होता है. ओके. इट ऑल्सो होल्ड द लोकल वेरिएबल. जो भी फंक्शन आप कॉल करते हैं तो उसके अंदर अगर आप कोई लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो एट इंस्टेंस किसी कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है, after execution it get destroyed. Okay. So they are local to that function. That area is that memory location is performing allocated in Java stack. Okay. Partial results also are there. Also we are going to store here. Now native method stack, it is it reserved for native method library. अगर आपका कोई मेथड है जो या फिर कोई फंक्शनैलिटी है जो अगर कोई हमारी नेटिव लाइब्रेरी की किसी फंक्शनैलिटी को यूज कर रही है, तो ये कहाँ पे रखी जाती है आपकी नेटिव मेथड स्टैक के. सो दीज आर द मेमोरी एरियाज जहाँ पे हम अपनी वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं या फिर उसका फंक्शनैलिटी को स्टोर करते हैं, लाइक मेथड एरिया फॉर मेथड का डाटा या फिर रन टाइम कांस्टेंट पूल्स के लिए हीप हमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, पीसी में आपके एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहता है, जेडीके दैट जावा स्टैक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द लोकल वेरिएबल्स या पार्सली कंप्यूटर रिजल्ट हो या फिर आपका मेथड इन्वोकेशन या रिटर्निंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो सारी चीजें आपके यहाँ पे स्टोर होती हैं. ओके. Now native method stack is responsible for native method library. Okay, let's move further. ये था आपका क्या होगा पोर्शन ऑफ मेमोरी. ओके. नाउ आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई, मेमोरी में डाटा डाटा अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन पे चला गया. इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट वी रिक्वायर एन एग्जीक्यूशन इंजन. एग्जीक्यूशन इंजन में दो चीजें होती हैं. One is interpreter, another is just-in-time compiler. Okay, what interpreter is going to do? It is going to read the bytecode string, then execute the instruction. और इस कन्वर्जन का ना जब हमारा बाइट कोड का मशीन पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन जो ये हो रहा है, हाँ दैट सो ये कन्वर्जन टाइम कंज्यूमिंग ना हो तो हमारे पास क्या एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर है. ओके. ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है? इट इज यूजफुल फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपाइलेशन. ठीक है. तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा? बाइट कोड के एक कुछ पार्ट्स को कंपाइल करेगा जो जिनकी फंक्शनैलिटी क्या है? सेम है एट अ सेम टाइम. ठीक है. जो भी हमारी कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है? पार्ट ऑफ द बाइट कोड को कंपाइल करता है दैट हैज द सिमिलर फंक्शनैलिटी एट द सेम टाइम. इससे क्या फायदा मिला? इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू कंपाइल. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ योर जावा वर्चुअल मशीन. हमारी जावा वर्चुअल मशीन में क्लास लोडर होता है, आपका रन टाइम एंड रन टाइम एरिया होता है, मेमोरी एरिया वहाँ पे होती है, और हमारा एग्जीक्यूशन इंजन होता है जो हमारे कोड्स को एग्जीक्यूट करता है. ओके. सो दिस इज अबाउट योर JVM. लेट्स टॉक अबाउट द JRE. JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. इट इज यूज टू प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट. ओके. अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर JRE रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है और JVM भी रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो आपकी जो JVM होती है इट इज एब्स्ट्रैक्ट मशीन, है ना. वो आपकी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती. वो जब रिक्वायर्ड होती है तब भी आपकी दैट दैट इज गोइंग टू बी इन फंक्शनैलिटी. बट आपका जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है और दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर जावा वर्चुअल मशीन. आपके जावा वर्चुअल मशीन का इम्प्लीमेंटेशन ही हमारा JRE है. इफ यू टॉक अबाउट दिस इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट,
हमारा जो जावा जावा रन टाइम एनवायरमेंट है, दैट JRE, ये क्या कंटेन कर रहा है? आपकी जावा वर्चुअल मशीन कंटेन कर रहा है। इट कंटेन द सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड अदर फाइल्स जो हमारी रिक्वायर्ड है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। ओके, सो इट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट जो हम बेसिकली फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ talk about the JDK. JDK is stand for Java Development Kit. Again, it is physically exist, so it contain both your development tool और that Java runtime environment जो कि हमारा JVM का implementation होता है। Okay, so if we talk about this diagram, it contain JRE, that is your Java runtime environment, जिसमें हम लोग रन करेंगे, और डेवलपमेंट टूल किट्स जिसमें हम डेवलप करेंगे अपनी क्लास फाइल्स। तो जैसे जावा सी, जावा, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। होप सो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि जेवीएम होता क्या है, व्हाट इज इनसाइड दैट जेवीएम। तो आपके इस सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके अंदर कौन कौन से क्लास लोडर एग्जिस्ट करते हैं, क्लास लोड के क्या काम होते हैं, कौन कौन से मेमोरी एरिया में कौन कौन सी चीज रखी जाती है, आपका एग्जीक्यूशन इंजन क्या क्या चीजें कंटेन करता है, आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जे जेबीएम, जेआरई एंड जेडी। ओके, अब आप इससे रिलेटेड आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आपके सामने आती है, तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर योर क्वेरी। अगर आपकी कोई सजेशन है, प्लीज मेंशन दैट थिंग इन योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।